today we are going to start with the exercise 10.3. But if you not watch the video introduction video of exercise 10.3, it means previous lecture, then first you go through that lecture, video lecture, and then you can come to this 10.3 exercise. So the first question of this exercise is find the angle between two vector A and B. The magnitude of two vector is given to you and the dot product of two vector is given to you. We have to find out the angle between these two vector. So जैसे ये A vector है, this is B vector. Let the angle between solution. Let theta be the angle between किसके A vector and B vector. So we have a formula cos theta is equal to A vector dot B vector upon magnitude of A vector magnitude of B vector. So what is the value of A vector dot B vector? That is under root 6. Magnitude of A vector under root 3 and magnitude of B vector, that is 2. Okay. So this 3 can I write like this? Under root 3 into under root 2. Clear? So we can write like this, under root 3 into under root 2 under root 3 into 2. So ये क्या हो गया? Cancel out. ये भी क्या हो गया? Cancel out हो गया. ये क्या बच गया? Under root 2 is left with us. हमारे पास under root 2 बच गया. So ये आ गया cos theta is equal to 1 upon root 2. It implies theta is equal to cos inverse 1 upon root 2. और cos में 1 upon root 2 वैल्यू कब होती है? 45 डिग्री पे होती है. So theta is equal to cos inverse cos pi by 4. ये cancel out हुआ. It implies pi by 4. So the value of theta is pi by 4. Now come to problem second again. This is find the angle between the vector this and this. अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है. सो एंगल अगर ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, पहले हमें डॉट प्रोडक्ट दे रखी तो हमने ऐसे निकाला. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द एंगल? अब हम एंगल कैसे निकालेंगे? कई सारे तरीके हैं. सॉल्यूशन लेट A vector is equal to I cap minus 2j plus 3k cap. B vector is equal to, इनका नाम लिख लेते हैं, plus k cap. And theta be the angle between given vectors. Okay. तो थीटा क्या आ गया? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आ गया. तो हम क्या करते हैं, स्केलर कंपोनेंट वाला जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं. वो क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल व्हेन वी यूज स्केलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स. सो a1 ये b1 c1 a2 b2 c2, तो स्केलर कंपोनेंट आ गए. तो cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? a1 यहां 1 है, a2 यहां 3 है, प्लस a1 यहां -2 है, सॉरी ये b1, और यहां b2 है -2 हो गई, प्लस c1 यहां 3 है और यहां c2 1 अपॉन अंडर a1 b1 c1 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अगेन सेकेंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस. So what is left with you?
थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 2 to the 4 7 plus 3 10 नीचे 14 अंडर रूट 14 तो वो क्या बन जाएगा 14 2 5 जा 2 7 जा तो योर आंसर विल बिकम cos इनवर्स 5 upon 7. This is angle theta. Clear? So like this we can find out the value of all such kind of questions. जैसे हम बात करें अगर हमें वेक्टर्स की इक्वेशन दी गई हो तो दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म टू फाइंड आउट एंगल थीटा। और जब हमें सारी चीजें दे रखी है, मैग्नीट्यूड हो गया, फिर डॉट प्रोडक्ट होगी, उस समय थीटा निकालना है तो यू कैन यूज दिस, डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Now, next third and fourth question is depend upon projection of A vector on V vector. So this is find the projection of the vector this on the vector this, यानी इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पे। So first of all let name it A vector is equal to I cap minus J cap, then B vector is equal to I cap plus J। सबसे पहले नेम करते हैं इसका, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर। जब हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर निकालते हैं, इसका मतलब ए वेक्टर के साथ हम बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सो हम ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके, दूसरे जो जिसके ऊपर ये प्रोजेक्टेड है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। दिस इज द फॉर्मूला, और यू कैन से दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख लो, ऐसे वन इज द सेम थिंग। नाउ ए डॉट बी हमें निकालना है, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर is equal to I cap minus J cap dot I cap plus J cap upon B vector का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी I cap का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। सो ये आ गया I डॉट I 1 माइनस J डॉट J 1 अपॉन अंडर रूट, तो इट विल बिकम 0 यूनिट्स। कितना आ गया ये आंसर, 0 units. Okay, now come to find the projection of the vector. Again let A vector is equal to I cap plus 3j plus 7k, B vector is equal to 7I cap minus j plus 8k. Now we have to find out the projection of A vector on B vector। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर। तो जिसके ऊपर निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ क्या कर दो, गिवन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। सो इट इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? अब हम ए डॉट बी निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इट इंप्लाइज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, करो इसको, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अपॉन बी वेक्टर है हमारे पास अंडर रूट, बी वेक्टर ये है 49 प्लस 1 प्लस 64, 7 का स्क्वायर 49, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 1 इंटू 7 7, बाकियों के साथ तो ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा होता है 56। क्लियर हो गया? सो हमारे पास आ गया कितना, प्लस 56 अपॉन अंडर, ये 50
50 और 60 110, 110 और 4 114. So it implies charge 60 upon under root 100 units. So this is the value of projection A on B. Clear? So like this we can find out the projection. If suppose question will be there, find the projection of this B vector on A vector, then what to do? तो जिसके ऊपर प्रोजेक्टेड होता है उसके यूनिट वेक्टर से क्या की जाती है, गिवन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की जाती है, यही प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है. सो लाइक दिस यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन. पॉज द वीडियो टू नोट. Okay, now listen. This is very important question. Important question. Show that the given three vectors are unit vector. सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं. इसका मतलब ये होगा, यूनिट वेक्टर कैसे शो होता है, कोई भी वेक्टर कि अगर उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल, इट मींस दैट रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर. एंड ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसका मतलब कि हमें ये भी शो करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके और ये इसके परपेंडिकुलर है. देन वी कैन से दैट कि दीज थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. चलो लेट अस नेम आउट फर्स्ट. हम सबसे पहले इनके नाम रख लेते हैं. ए वेक्टर 1/7 2i cap plus 3j cap plus 6k. Clear? Then B vector then B vector is equal to 1/7 3i cap minus 6j plus 2k. Okay, then C vector 1/7 6i cap plus 2j cap minus 3k. Okay, now first of all we have to show that they are unit vector. So मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 7 सबके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फर्स्ट का स्क्वायर 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49. ऐड करेंगे यू विल गेट 49/49. सो योर आंसर इज 1 यूनिट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्या होगा, ये हो जाएगा कि दिस इज यूनिट वेक्टर. सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49 एंड दिस विल बिकम अगेन 49/49, 1 यूनिट. देन सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49. अगेन दिस इज इक्वल टू 49/49, सो 1 यूनिट. तो ए बी सी जो है दे आर व्हाट, दे रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर. वही हमें शो करना था कि शो दैट द गिवन थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर. सो ए बी C are unit vectors. Clear? Okay, unit vector. अब now we have to show that कि they are mutually perpendicular to each other. ये सभी क्या है? Mutually perpendicular है. किसके साथ? एक दूसरे के साथ. अब उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा. परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती थी? If A dot B is equal to 0, then A is perpendicular to B. सो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी. सबसे पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. चलो, ए डॉट बी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. 1/7 मैं कॉमन ले लेता हूं. फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 6, सेकंड वाला सेकंड के साथ -18, थर्ड वाला थर्ड के साथ +12. ये कितना आ गया? 0. It means A dot B is equal to 0. It implies A vector is perpendicular to B vector. अगर A dot B 0 के इक्वल आता है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि थीटा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 का. तो इट मींस
they are perpendicular to each other. Now second, b vector dot c vector. अगेन 1/7 कॉमन ले लेते हैं, b डॉट सी, 6 3 18 minus 12 minus 6. Again this will become 0. So b vector dot equal to 0. It implies b vector is perpendicular to c vector. Clear? थर्ड क्या कहता है, c vector dot a vector. 1/7 अगेन कॉमन, ये c और a है, 6 2 12 plus 6 minus 18. So again this will become 0. So c vector dot a vector is equal to 0. It implies c vector is perpendicular to a vector. A vector is perpendicular to b vector. It implies a vector is perpendicular to b vector and b vector is perpendicular to c vector and c vector is perpendicular to again a vector. It implies कि a b c vector are mutually perpendicular vectors. Clear? So like this we can sort of solve these kind of problem. Pause the video to note down. Problem 6. Again this is important, you will find this problem in the examination. Find magnitude of A and magnitude of B. If this addition of two vector and subtraction of dot product of addition and subtraction of two vector is equal to 8 and magnitude of A is equal to 8 times magnitude of B. So this is a property and I taught you this property in my introduction video of 10.3 exercise. Clear? So ये प्रॉपर्टी हमें किसकी क्या बताती है, आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आल्सो यू कैन राइट डाउन प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई है. बट अगेन दोज हु आर न्यू, मैं यहाँ बता देता हूं कि ये कैसे आती है. इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर. इसको वी कैन राइट a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस कम्यूटेटिव होती है ये प्रॉपर्टी सॉरी ये माइनस आएगा, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर. क्लियर हो गया? सो इसके बदले ये लिखा जा सकता है. नाउ इट इज गिवन टू अस, क्या गिवन है? गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ b. सो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर निकालना है तो ये 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8. तो ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कितना b का स्क्वायर कितना टाइम 63 टाइम इक्वल टू 8. सो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन 63. इट इंप्लाइज कि मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 63. ये किसकी वैल्यू आई? मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू आ गई हमारे पास. क्लियर? अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे. अगर इसमें से कोई चीज कॉमन निकाली जा सकती है तो दैट यू कैन टेक आउट कॉमन. सो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 2 और नीचे कितनी आएगी? 63 है. तो 63 किस टेबल में आता है? 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63. So this one. Now the value of magnitude of b is equal to 2 by 3 under root 2 upon 7. Now we have to find out the value of a. So a vector is equal to क्या है? 8 times the magnitude of b vector. The magnitude of a vector is equal to 8 times the magnitude of b vector. ये वैल्यू पुट कर देते हैं. It implies magnitude of a vector is equal to 8 into 2 डायरेक्टली लिख देता हूं 16 upon 3 अंडर रूट में 2 upon 7 यूनिट्स.
Clear? So like this we can find out the value of the magnitude in such conditions. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 7 and 8. Evaluate the product of this. हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है. सॉल्यूशन डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, कहने का मतलब इट्स वेरी सिंपल. डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान होती है टू फाइंड आउट. दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट बहुत इजीली निकाली जा सकती है. नाउ कम ऑन, 3 2 6. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. देन प्लस 7 3 21. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. क्लियर? देन दिस माइनस 5 2 10. बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. उसके बाद लास्ट माइनस कितना 7 5 35. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर. नाउ इट इंप्लाइज यू नो दैट कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, सेम होता है. तो 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 21 माइनस 10 प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन वेक्टर्स. क्लियर? तो ऐसे हम इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. नाउ कम टू प्रॉब्लम 8. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. यानी हमें गिवन क्या है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है. बस हमें निकालना है इन दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कि क्या होगी. सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड देयर स्केलर, यानी स्केलर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, वो कितनी है 1/2. सो नाउ इट्स वेरी सिंपल. हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं. सो लिख लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन given vectors. Okay, so cos theta is equal to a vector dot b vector upon magnitude of a vector magnitude of b vector. So a dot b कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इंप्लाइज वो है 1/2. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, सो बी की जगह ए ही रख लेते हैं. तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर. इट इंप्लाइज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर. अब थीटा की वैल्यू कितनी है, cos 60 डिग्री. 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर. cos 60 होता है 1/2. 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कितना आ गया 1. इट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया 1b. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर था, ये देखो, तो उनकी वैल्यू कितनी आ गई 1. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. प्रॉब्लम 9 क्या कहती है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर. तो हमें ए वेक्टर क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाए 1 के इक्वल, वो यूनिट वेक्टर होता है. सो यानी अगर ये यूनिट वेक्टर इट इज गिवन टू यू, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1. नाउ यूज दिस, हमें जो गिवन है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं. डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12. दिस इज अगेन ए फॉर्मूला a माइनस बी डॉट ए प्लस बी. सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12. ये प्रॉपर्टी है हमारे पास. ओके, देन
x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 12. सो x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 30. इट इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. Okay, now again this is very important. A vector is given, B vector is given, C vector is given, and such that A plus lambda B vector is perpendicular to C vector, and find the value of lambda. If these two vectors are perpendicular, it means इनकी dot product किसके equal होगी? It will become equal to 0. So solution. But first of all we have to find this A plus lambda vector. So A vector की जो value है 2i cap plus 2j plus 3k. Then B vector की वैल्यू है that is minus I cap plus 2j plus k cap. So A vector plus lambda time B vector is equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda time minus I cap plus 2j plus k cap. So now ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा और ब्रैकेट के बाद आई कैप, ये देखो. देन सेकेंड प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा देन जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा और ब्रैकेट के बाद के कैप. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर. अब इट इज गिवन टू यू कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. इट इज given that A vector plus lambda time B vector is perpendicular to C vector. It implies कि इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 की इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि यही कंडीशन किसकी होती है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स की होती है. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. अब इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है और C वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट सी 3 आई कैप, ओके, 3 आई कैप प्लस जे इज इक्वल टू 0. नाउ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले के साथ होगी, 3 की इसके साथ करेंगे 6 माइनस 3 लैम्डा, जे वाले की जे के साथ तो ये 1 है प्लस 2 लैम्डा, के है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो लैम्डा इज इक्वल टू 8. So this is the value of lambda if this condition is given to you. 3 वेक्टर हैं, इनमें से ये निकालना था, ये परपेंडिकुलर है C के. Okay, now like this we can find out the value of lambda. So in this video you have to solve question number 1 to 10 of exercise 10.3. These are simple questions based on the basics terms, based on the properties. I hope you understood well. Pause the video to note down, and till that